To determine the resistance of galvanometer by half deflection method and to find its figure of merit. Now the apparatus are required: a galvanometer, voltmeter, battery or battery eliminator, two resistance box. First is a 10,000 ohm and second is a 200 ohm या 500 ohm. Two one-way key, rheostat, screw gauge, meter scale, an ammeter of given range, connecting wire and pieces of sandpaper. There is a main apparatus is required in this practical only for which is galvanometer, battery eliminator, two resistance box and two one-way key. Now the theory. The resistance of the given galvanometer as found by the half deflection method is given by G is a galvanometer resistance, R is a resistance box, there is a high resistance box, S is a shunt resistance, there is a small resistance box, and R minus S. Now the second is find the figure of merit. The figure of merit K is equals to E upon R plus G theta, where E is the EMF of the cell and theta is the deflection produced with the resistance R. Now the maximum current can be passes through the galvanometer can be find Ig is equals to Nk, where N is the total number of division on galvanometer scale on either side of 0. Now the circuit diagram of resistance of the galvanometer. The first circuit diagram is show that ये जो सर्किट डायग्राम आपको यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, इसमें दिस इज़ अ बैटरी एलिमिनेटर, वन वे की, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, galvanometer, small resistance box and K2. K2 is known as a second one way key. So the positive terminal of the battery is connected to the resistance box, ठीक है, and negative terminal of the battery is connected to the key, and resistance box the one terminal are connected to the galvanometer and galvanometer are parallel to connected the shunt and K2. So in this circuit diagram को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, ये आप लोग देख सकते हैं, देखिए, दिस इज नोन एज अ बैटरी एलिमिनेटर and there is battery eliminator are the two terminal of positive and negative. There is a resistance box. These resistance box are range of 500 ohm. So there is a small resistance box is known as a shunt. There is a one way key, okay, this is known as a one way key. This is the galvanometer. The galvanometer is a 20 microampere current measure, ये इतना करंट मेजर कर सकता है, and there is a two terminal of positive and negative, and there is a second one way key, ठीक है, and high resistance box, the magnetic coil of the resistance box, there is the range of the 500 ohm. So dear student, this is the connections of the circuit is a to find the resistance of the galvanometer. So negative terminal of the connection is K1 key, and K1 key is connected to the high resistance box terminal. High resistance box terminal are connected to the negative terminal of the galvanometer. Negative terminal of the galvanometer are connected to the second key K2. Now the second key K2 and the K2 key is connected to the resistance box of 1 to 500 ohm. आप यहाँ 1 to 200 ohm भी ले सकते हैं. And these resistance box are connected to the positive terminal of the battery, positive terminal of the galvanometer, because there are parallel, both are parallel, shunt and K2. This is parallel, and positive terminal of the galvanometer are connected to the battery eliminator के positive terminals. So these circuit diagram is known as the resistance of the galvanometer by half deflection method. Do you understand? ये एक बार आप अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा बेटा दूर से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और शंट रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है
नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द रेजिस्टेंस बॉक्स, जो लो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसको आपको K2 से कनेक्ट करना है। देयर इज K2, दिस की इज K2 एंड K2 की टर्मिनल और रेजिस्टेंस बॉक्स को आपको किससे कनेक्ट करना है? गैल्वेनोमीटर्स के नेगेटिव टर्मिनल से। एंड हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का जो टर्मिनल है उसको आपको कनेक्ट करना है K1 से एंड K1 आर कनेक्टेड टू द बैटरी एलिमिनेटर्स के नेगेटिव टर्मिनल से। अब हम यहाँ से स्विच ऑन करते हैं। देखिए सबसे पहले इसकी प्रोसीजर क्या है, हमको प्रोसीजर फाइंड करना है। उससे पहले हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल देखेंगे। देयर इज ऑब्जर्वेशन टेबल, द टेबल फॉर रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, सीरियल नंबर 1 2 3 4। रेजिस्टेंस बॉक्स आर, जैसे आर का मतलब आता है तो मतलब आपको समझना है यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस बॉक्स की बात हो रही है। डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, फिर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, शंट फाइंड करना है, फिर हाफ डिफ्लेक्शन निकालना है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये आज हमको करना है। सो डियर स्टूडेंट, अब हम कैसे करेंगे देखिए प्रैक्टिकल में। आपको स्विच ऑन करना है, वोल्टेज आपको दोनों की को ओपन करके रखना है, की K1 एंड की K2। ओके, अब आपको वोल्टेज को सेट करना है 2 से 4 वोल्ट पर। आपको वोल्टेज को कितने पे सेट करना है? 2 वोल्ट से 4 वोल्ट तक। आप चाहें तो 2 पे कर सकते हैं या 4 पे, हमने 2 पे सेट किया है। अब आपको क्या करना है, K2 की को ओपन रखना है, K2 की को ओपन रखना है और K1 की को इंसर्ट करना है। ओके, जैसे आप K1 की को इंसर्ट करेंगे डिफ्लेक्शन आपका गैल्वेनोमीटर बहुत हाई रेंज में देगा। उसके लिए आपको क्या करना है, रिमूव द हाई रेजिस्टेंस बॉक्स ऑफ 5000 ओम, ठीक है, अगेन 2000। और आपको डिफ्लेक्शन हमेशा किस में लेना है? इवन नंबर में। अब आप देखिए डिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर 29। तो आप मान लीजिए कि सपोज आपने यहाँ से कितना ले लिया, 500 प्लस 200 कितना हो गया? 700। 8 सही बोला। और फिर 1000, तो 5000, 2000 एंड 1000, टोटल 8000 का आपने क्या लिया है? रिमूव किया है। तो आपको प्रैक्टिकल में जहाँ पे आर दिया है वहाँ पे कितना लेना है? 8000 ओम। ओके, अब जब आपने यहाँ से 8000 ओम का रिमूव किया है तो अब आपको देखना है डिफ्लेक्शन कितना मिल रहा है। डिफ्लेक्शन हमको मिल रहा है 20। कितना मिल रहा है डिफ्लेक्शन? 20। ओके, तो हमको यहाँ पे फिर अगेन कितना डिफ्लेक्शन लिखना है? 20। अब हमको क्या करना है, 20 का हाफ डिफ्लेक्शन कितना होता है? 10। ठीक है, अब हमको K2 की को इंसर्ट करना है। मैं पहले से ही रिमूव कर चुकी हूँ डिफ्लेक्शन। मैंने यहाँ से रिमूव किया है 50, 100, 200। अब आपको देखना है यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना शो हो रहा है। ये मतलब आपको डिफ्लेक्शन 10 पे डिफ्लेक्शन आपको कितना मिलना चाहिए? 10। हाफ डिफ्लेक्शन मतलब आपको इतना इंसर्ट करना है कि डिफ्लेक्शन आपको हाफ मिले। स्मॉल रेजिस्टेंस, अभी 10 नहीं आया ना, हमको और रिमूव करना पड़ेगा। 5, 2, 50 पे ज़्यादा हो रहा है, मतलब हमको छोटा स्मॉल रेजिस्टेंस मेज़र करना पड़ेगा। तो हम 20 का 10 का लगाएंगे और आ गया नहीं। अब हमारा जो कितने ओम का रिमूव किया है? 50 ओम का जब हम यहाँ से हटाते हैं तो हमारा डिफ्लेक्शन हाफ आ जाता है। हाफ मतलब 10, ठीक है। तो हमारा जो डिफ्लेक्शन आया है ये कितना है आपका? 10। अब हम यहाँ पे रीडिंग नोट करेंगे कि 50 ओम हमने शंट रेजिस्टेंस निकाला तो डिफ्लेक्शन हो गया है हमारा 10। अब हमको जी निकालना है, तो जी कैसे निकालेंगे? R × S, तो ये हो जाएगा आपका
8000 इंटू 50 अपॉन R इंटू एस, ये इंटू ये, इंटू 8000 माइनस 50। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी? जी की। यही प्रैक्टिकल हमको फिर किसके लिए करना है? अगेन। अब हमने कितना रिमूव करना है? हमको यहाँ से 2000 मतलब K2 की को इंसर्ट करना है और रिमूव करना है। रिमूव आपने कितना किया है? 500, मतलब 5000, 2000, 2000, 1000। अगेन आप ले लीजिए। फिर आपको डिफ्लेक्शन देखना है, डिफ्लेक्शन मेज़र करना है। डिफ्लेक्शन मेज़र करने के बाद आपको K2 की को इंसर्ट करना है। सिमिलरली प्रैक्टिकल, फिर आपको इसमें से शंट से की ओपन करना है और हाफ डिफ्लेक्शन लेना है। ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू कितने टाइम्स करनी है? 4 टाइम्स। ओके, ठीक है। इस तरह से आपको रीडिंग मेज़र होगी। जैसे 8 के बाद आप 10 ले लीजिए, है ना। 10 के बाद आप 11 ले लीजिए, 11 के बाद आप 12000 ले लीजिए। इस तरीके से आपको रीडिंग मेज़र करना है। चाहे तो आप 5000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।